Assam's political journey is not just about elections. It is a story of identity, power, and transformation. For decades, Assam was governed by the Indian National Congress, especially under the long leadership of Tarun Gogoi, who ruled the state from 2001 to 2016. His tenure brought stability after years of unrest, but many structural challenges remained unresolved. Back then, Assam faced persistent issues of illegal immigration, ethnic tensions, and insurgency related concerns. Development was steady but not transformative. Infrastructure growth was slow, industries struggled to expand, and governance often appeared reactive rather than visionary. And then came the turning point. 2016 elections. Everything changed in 2016. For the first time, the Bharatiya Janata Party formed a government in Assam under Sarbananda Sonowal. This was not just a victory, it was a political shift. The BJP campaigned strongly on the idea of protecting Assamese identity, Jati Mati Bheti, and took a firm stance on illegal immigration. At the same time, it built powerful alliances with regional parties, creating a broader coalition. But behind this victory, one strategist stood out: Himanta Biswa Sarma, the architect of change. Once a key leader in Congress, Himanta Biswa Sarma switched to BJP in 2015. That move reshaped Assam politics. By 2021, he became chief minister, and since then, he has emerged as the central force in Assam's political landscape. His leadership style is sharp, assertive, and highly strategic. He combines welfare delivery with strong political messaging. Under him, governance has become more aggressive, more visible, and more politically defined. Today, many observers believe Assam's politics revolves largely around his leadership. And what changed under BJP rule, how BJP government came into power, and how we are looking at Assam's transformation. Let's get deeper with Padma Shri Vishnu Pandya ji. He is with us today. He is the advisor of the Global Eye. So, sir, welcome to the Global Eye once again. नमस्कार। सर, असम की राजनीति इस समय हम देखें तो कुछ बहुत अच्छा बोले या बुरा बोले, बट कुछ वर्षों से एक बड़े बदलाव आ रखा है जो देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एक बड़े बदलाव से गुजरी है। पहले नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहां पे गढ़ था, अभी बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। तो और हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में असम का, आप पूरा असम का जो विकास है आप किस तरीके से देखते हैं, और असम का जो ये पॉलिटिक्स है इंडियन कांग्रेस पार्टी से लेके बीजेपी तक, आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? अब इस बार का जो चुनाव हुआ असम में, उसके लिए एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। असम एक विशिष्ट प्रदेश है, आपने कहा, ठीक कहा। वो केवल जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो कल्चरल भी है। और ऐसे प्रदेश हिंदुस्तान में बहुत कम है। सीमावर्ती प्रदेश अखंड असम था। ये 7 तो बाद में प्रदेश हुए, जिसको सप्तभगिनी नाम दिया, 7 सिस्टर्स। लेकिन इससे पहले अखंड असम था। और उसी असम ने ब्रिटिशरों के खिलाफ जो बहुत बड़ी लड़ाई की, हमारे इतिहास में उसका कोई बयान ही नहीं है। अब जैसे लचित नाम का एक बहुत बड़ा राजवी था, उन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ तो ठीक है, औरंगजेब को 17 बार लड़ाई में पराजित किया था। और जब असम आंदोलन चला, मैं 1980 में था असम में, तब मैंने देखा वहां कॉटन कॉलेज है, वो असम आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सर, मैं वहीं से पढ़ी हूँ। हाँ, और उसमें बड़ा चित्र वो लचित महाराज का था। मैंने कहा ये कौन है? तो कि ये हमारा शिवाजी है। हम असम आंदोलन के लिए उनको आदर्श मानकर चला रहे। तो मैं ये असम की एक परंपरा, अलग परंपरा, नॉर्थ ईस्ट पुराना
प्राग ज्योतिषपुर, पांडवों की वहां की यात्रा चली, अ, बहुत से वहां उतार चढ़ाव आए। मूलभूत जो असमी प्रजा है, आपको तो पता है, वो असम तो हमने अंग्रेजों के कारण कहा, वास्तविकता है अहोम, अहोम नाम की प्रजा। और आंदोलन के दौरान आज भी वो कहते हैं जय आए अहोम, असम की जय हो। अब हमने हमारे ओठों पर असम आ गया है इसलिए हम असम बोलते हैं, लेकिन उनका जो कल्चरल है पूरा पान, वो अलग प्रकार का है। वर्तमान स्थिति का हम पहले विचार करें तो जो चुनाव हुआ, भारत जो अंतिम हमारे पास जो परिणाम के कुछ आए हैं आंकड़े, शायद आपके पास आए तो मुझे बताना। भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट्स मिल रही, तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन होने वाला है, तीसरी बार। कभी भी नहीं हुआ ये। 1952 से आप देखिए, विष्णुराम मेघी थे, गोपीनाथ बारडोली थे, अनवरा तैमूर थी, ये सब कांग्रेस के हैं। गोगोई थे, जो आज गोगोई उनके विरोधी दल के नेता हैं, उनके पिताजी। तो ये सभी लोगों ने असम की मूलभूत समस्या पर कुछ ध्यान नहीं दिया, केंद्र ने भी नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से, आफ्टर ऑल क्या क्या हुआ वो हम थोड़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये इसी की प्रतिक्रिया के रूप में, अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि असमी हिंदू इकट्ठे हो गए, मैं इतना नहीं मानता हूं। हिंदू के उपरांत जो वहां के स्थानिक मुस्लिम है, जो ओरिजिनल असमी है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। नहीं किसने दिया? तो जो घुसपैठ लोग आए, बांग्लादेश से आए हैं, अन्य जगह से आए, एकाध सौ या एकाध हजार नहीं, लाखों की संख्या में। और बिल्कुल। 1975 1983 में जब मैं गया था तो मुझे एक आंकड़े बताया गया था कि यहाँ अभी 18 लाख लोग घुसपैठी मतदाता बन गए। उनके वोट के आधार पर कांग्रेस जीतती रही थी, और इसी आधार पर चुनाव हुआ था। एक बार जो चुनाव हुआ उसका पूरा असम ने बहिष्कार किया। आपको आश्चर्य लगेगा कि ठीक हम बंगाल की बात कर रहे हैं ना, तो ये असम में भी एक बार ऐसा चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। मतलब चुनाव कमिश्नर, चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, अफसर थे, प्रमुख अध्यक्ष थे, वो मिस्टर त्रिवेदी करके, त्रिवेदी को इंदिरा जी ने बताया, इंदिरा जी को उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है, नहीं परिस्थिति ठीक है आप करो। और चुनाव आयोग ने वहां चुनाव करवाए। कैसे चुनाव? पूरी असम की प्रजा, बहिष्कार कर दिया उन्होंने कि नहीं हम नहीं चुनाव में जा पाएंगे। तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10%, 10%, 10% वोट पड़े। बाकी उम्मीदवार तो थे नहीं, केवल कांग्रेस के थे, कुछ इधर उधर के थे। तो कांग्रेस की ऐसी अल्पमत की सरकार बन गई। अब 10% मत पूरे के पूरे किसी प्रत्याशी को मिलता है तो भी उनके चुनाव संहिता के अनुसार डिपॉजिट रद्द हो जाती है। अब ये बिना ये डिपॉजिट वाले लोग उनकी सरकार बनी। अब कैसी सरकार बने? फिर हत्याकांड हुआ, नेली हत्याकांड हुआ, बाकी सब हुआ। 1983 में दोबारा गया था मैं, 1980 और 83 मेरे लंबे प्रवास। 83 में जस्टिस तारकुंडे और कुलदीप नायर पत्रकार, वो भी उनके साथ मैं भी था। तो हमने देखा सब जगह प्रजा की एक अलग पहचान होती है साहब। ऐसी पहचान मैंने 1956 में गुजरात में महागुजरात आंदोलन जब हुआ तब देखी थी। ऐसी बहुत कम होती है। ठीक उसी तरह असम की जो समस्या है, उनको समझना आवश्यक था, कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि वोट बैंक का मामला था। बांग्लादेश से लाखों लोगों की संख्या ऐसे, मैंने उनकी सीमावर्ती स्थिति देखी है, कोई भी आ सकता था। थोड़े पैसे दे दो एजेंटों को, आ जाए, आ जाने के बाद ब्रह्मपुत्र के किनारे खेती में घुसपैठ करे, खेती की जमीन ले ले, व्यवसाय करे, भाषा सीख ले, उर्दू को ज्यादा महत्व दे,
और मतदार बन जाए। मतदार बनने के बाद उनका प्रतिनिधि कैसा हो सकता है, आप सलाह कर सकते हैं। परिस्थिति बहुत गंभीर परिस्थिति को यदि किसी ने समझा हो तो पहले राजीव गांधी ने वैश्विक करना अच्छा है। ये उन्होंने आंदोलनकारी सब आप समगण जी बोला बुलाया, ये मंत्रणा की प्रश्न ये चर्चा की उनकी, ये बहिरागत और विदेश, थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिक्स था। बहिरागत का वो सब ऐसा सब करते थे कि बैंक से हिंदू उनको भी बाहर निकाला जाए। ये नहीं थी कि बस और किसी संस्कृति बन गए और विदेशी थे वो ठीक है पहले लोग, तो लोग वापस में ये हुआ परिणाम। बाद में वो धीरे धीरे इसी कारण कांग्रेस में इसी भेद के कारण जो हमारे ये शर्मा वो कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, एमएलए बने थे, में थे, लेकिन उनको लगा ये तो ठीक नहीं रहा, कांग्रेस पतन के मार्ग पर एक बड़ा रोमांचक किस्सा है, रसप्रद। राहुल गांधी के पूरी समस्या दिखाई कि भाई उनको से सीरियस तो उन्होंने बयान किया है विश्वास है। मैं गया कि ड्राइंग रूम में बैठा, फिर राहुल गांधी आए, इनके साथ एक डॉग था, कुत्ता था, उनका लोकप्रिय बैठा, फिर बिस्किट मंगवा कर उन्होंने कुत्ते को एक एक के बाद खाने के लिए देने लगे। कि मेरी ये मचा करना है, ये काम करूंगा। तो वो कुत्ते को खिलाते रहे और बेचारा मन उठ गया। उन्होंने ज्यादा मुझे लगा वेरी मच पॉजिटिव, लेकिन आप कुछ सोच नहीं रही है। और वहां से निकल कर वो और फिर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ने इनको परख लिया, ये बड़ा उद्दाम लड़ायक आदमी है, कुछ वहां की जो परिषद संगठन की है। सर आप क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी? हाँ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नॉट राजीव, राहुल की ही मैं बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने इस प्रकार का खतरनाक व्यवहार किया, इसी कारण हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर वो बीजेपी में गया, बीजेपी में उन्हें वो परिषद उनका अध्यक्ष, फिर उनको विधानसभा में चुनाव में टिकट दिया, फिर धीरे धीरे मुख्यमंत्री और तीन तरह से वो मुख्यमंत्री अपने ढंग से वो बहुत दृढ़ है। वो चाहता है कि हमको मैं बेटी के खिलाफ रख का ये का स्टैंड एंटी मुस्लिम सगुड़ा, वो मुस्लिम बच्चों का बेटा है, वो स्कूल लेता है, प्रश्न में मत करता है, तो मुस्लिमों में पोलर है। इस बार 82 जो सीट मिली को भाजपा को, उसमें दोबारा आ गए। उनको बंगाल जैसा कोई प्रश्न नहीं है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए प्रश्न नहीं है। उस मुख्यमंत्री
कुछ दिनों उनका भी हो जाएगा। कांग्रेस होती है धीरे धीरे, एक जमा है कांग्रेस को 100 से ज्यादा मुख्यमंत्री, जिस कारण आंदोलन ज्यादा कारण हुआ। ये लोग थे, उनके पहले बहुत अच्छे राष्ट्रवादी थे, विश्राम बेगी थे, इन्होंने चेती को और यहाँ प्रश्न जैसे में प्रयास हुआ था 41, ये जो ब्रिटिश दरख्वास्त थी उसमें कि असम, बंगाल बंगाल और कर पाकिस्तान बनाया। मैं कह रहा था कि इस की समस्या जियो पाकिस्तान मूल विभाजन में है। हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तभी कहा गया था कि यहाँ जो सिलहट जो है वो पाकिस्तान। देखिए हम बाद के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किए, और इस किताब में उन्होंने स्पष्ट कि ये पाकिस्तान साथ होना चाहिए, तब वो पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और पाकिस्तान, इसी में उन्होंने ये सजेस्ट किया है। और ये छोटी बात है, जो शेखपुर का पुस्तक है कि ईस्टर्न पाकिस्तान पॉपुलेशन में ये सब कहना है। भुट्टो भी एक मिथ ऑफ द पाकिस्तान, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल कश्मीर नहीं, पर दोस्त आगे बचाइए वहां के जो धीरे धीरे देखो, एक मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने किया है कि सोने की थाली में मैं आप दे दूंगा। याद रखिए, भारत इतनी बड़ी जो कॉन्स्पिरसी षड्यंत्र उन बीच असम जिंदा, थैंक्स टू उनमें 10 से ज्यादा कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, वो ध्यान भी करनी चाहिए। लेकिन जो हुआ अब ये वोट दिमाग में, उनके साथ को और भी पार्टी, हमें ये इसको पता नहीं, उनके भी जानकारी रखनी चाहिए। इस बार के चुनाव में भाजपा को 82, कांग्रेस को 19, फ्रंट उनको 10, असम जो अभी जिंदा है छोटी सी, अब तो नहीं, एक सरकार बनी थी, महंतो का चीफ मिनिस्टर, यंग बॉय, आंदोलन जिन लोगों ने किया वो फुल तो ये बाकी थे। मेरा उसे मिलना दिनों में हुआ, मैं एक नेता तो उनकी आसान तो नहीं रही ज्यादा, लेकिन उनको भी मिली। एक फंड है AIUDF, दो मिली, वो प्रो पाकिस्तानी मुस्लिम। एक राइजो दल है RJRE, को भी 2 शुल्क मिले। मैं को अब मिलना चाहे कि उनकी पूर्व कांग्रेस एक सीट मिली, कुल मिला के
कितने हैं। मैंने तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन दिनों में मैं बहुत भटका था। गुवाहाटी है, भवानीपुर है, बिहपुरिया है, बिलासपुरा है, विश्वनाथ है, बोकाजन है, नौगांव है, खोखराजार है, नेली के जहाँ बड़ी मात्रा में वनवासी वर्सेस मुस्लिम हत्याकांड हुआ, वहां भी मैं गया। ये सब कुल मिला 26 प्रत्याशी खड़े प्लस पार्टी के और 15 इंडिपेंडेंट। जो माहौल था, उस माहौल के लिए हमें हेमंत बिस्वा शर्मा को अभिनंदन देना चाहिए। बहुत कुशल से, दृढ़ता से तो उन्होंने आवेदन किया। कहते दिल्ली की नहीं, ये तो बहुत कठिन हो गया है, ये हुआ है। हंसी परवाह और उस प्रकार किया। अब दीक्षा, नौगांव, अलगपुर, बारसल्ला, बेटा, अमरी, बरहामपुर, अली, जोरहाट, नेली, सब जगह। तो ये 2021 के चुनाव बाद, इसके चुनाव में इतनी सफल नहीं मिली। 2020 में गिरी और 100 में 75 और भी मिली एनडीए सरकार। जो शादी का 85% आपने कहा था, इतना ज्यादा क्यों संभव है सब। और एक प्रकार की क्रिया तो उसके लिए सो वैसे कहा 10% बदला हुआ था एक जमाने में, उसका शासन हुआ था। लेकिन इस बार लोगों ने तय कर लिया था, ठान लिया कि भाई हमें ऐसी सरकार बनानी है कि प्रजा की सच में सुधार करे। अब देखिए इसका क्या, असम कांग्रेस का अध्यक्ष एक जमाने में एमएलए मिस्टर गौरव गोगोई हर गए, जो कुल मिला के 2,49,58,140 मतदाताओं ने वोटिंग किया है। यह ऐतिहासिक घटना है। और 85%, 38 पॉइंट ये वोटिंग हुआ। इसका जो हुआ उसमें भाजपा के साथ और भी नेशनल डेमोक्रेट फ्रंट, पाकिस्तान जो है उसमें जी है, राभा, सोंग, ये भी, और बोडोलैंड पीपल्स ये भी। तो इतना हुआ है। कांग्रेस का जो मोर्चा है उसमें 8 दल, ये सब देखना। और जो डाले उसको असम समिति मोर्चा ऐसा नाम में, और भी मिलके एक 26 कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने जरा डिटेल्स में आप बताया। तो सर, अभी जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा को आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत लोग पसंद करने लगे हैं, और इस बार की जीत ने तो कमाल ही कर दिया है। इस बार की जीत ने कहीं ना कहीं ये प्रूव करवा दिया कि असम की जनता जो है हिमंत बिस्वा शर्मा को चाहते हैं। बट क्या असम अब एक वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट बन चुका है? आपको लग रहा है लोकतंत्र में अभी भी मतलब वो एक बाकी है कोई चांस, या ये असम में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस, ऐसा तो कुछ नहीं रह गया है विथ हिमंत बिस्वा शर्मा कमिंग अगेन? नहीं, ये बात आपकी सही है। इसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेवार है। वो लड़ सकती थी, अपना पुराना अतीत का एक तेजस्वी अतीत भी था।
लेकिन उनके पास अब पार्टी में नेता नहीं बचे और कार्यकर्ता धीरे धीरे नासीपास। बहुत से लोग निकल गए, बीजेपी में आ गए। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा का एक मिशन ये भी है कि अच्छे लोग वहां से यहाँ ले जाओ, तो उसको काम देंगे हम। और उसी में ये हुआ है। ये उसका 1969 में फरवरी में जोरहाट में इसका जन्म हुआ था, हेमंत बिस्वा। एक चरित्र भी इसका देखने लायक है। वो 2001 से 2015 तक कांग्रेस के एमएलए थे। आश्चर्य लगेगा लेकिन था। उनको दो संतान है, एक पुत्र है और एक पुत्री भी। और 10 मई 2021 से उनका सीएम का सुवर्ण युग शुरू हुआ। 2015 से भाजपा और काफी हजार, अब इस बार भी उन्होंने 87,701 वोटों से के अंतर से की जीत हासिल की है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कॉटन कॉलेज में शिक्षा पाई थी, बाद में वो डॉक्टरेट लिया। इस कॉटन कॉलेज में गया हूं मैं। आसाम आंदोलन के यंग लड़के, ये प्रफुल्ल महंतो और भृगु फुकन और बाकी सब थे उन दिनों में, तो वो लोगों की जबान पर थे सब। असम साहित्य सभा थी बहुत बड़ी, और उसका भी उसमें बहुत सहयोग था। तो ये सब उनका। इस बार जो जीते हैं वो जलूक बारी, 37 जलूक बारी, इसमें उनका विजय कांग्रेस की विदिशा नेगी, सॉरी, उनसे हुआ है। ये डिटेल्स ऐसी इंटरेस्टिंग है कि असम के बारे में जब बोलते हैं तो पूरा असम हमारे सामने आ जाता है। और आपने एक प्रश्न ठीक किया। कुछ लोगों को हेमंत बिस्वा से ज्यादा लोकप्रिय रहे इसकी चिंता है। पार्टी में भी, प्रत्येक पार्टी में ये होता होगा, इस पार्टी में भी ये हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तीसरी बार उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए और किसी को मौका देना चाहिए। उनके खिलाफ कोई ना कोई थोड़े बहुत से आरोप भी भ्रष्टता के इत्यादि इत्यादि वो तैयार किए हैं, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं। हेमंत तो फिर बिस्वा यहाँ हीरो हो यहाँ गया है सबका। तो यहाँ आपको लगता है हेमंत बिश्वा शर्मा एक असम की मतलब असम में बीजेपी से भी बड़ा चेहरा बन चुके हैं? मतलब बीजेपी नहीं, हेमंत बिश्वा शर्मा एक अलग ही एक चेहरा बन चुका है। तो मतलब वो कहीं भी जाए वो जीतेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो एक चेहरा बन चुका है बीजेपी का नहीं, वो असम में? बीजेपी का प्रमुख चेहरा ही है, ये बात सही है। लेकिन उनके साथ साथ असम में बीजेपी को सबसे ज्यादा सहाय किए, समर्थन दिया है, वो आरएसएस के लोग हैं। विवेकानंद शिला केंद्र के लोग, मजदूर संघ के लोग है। वो जो संघ परिवार के जो अलग अलग क्षेत्र है, उन सभी को आदेश दिया गया था कि भाई असम हमें बचाना है। नेशनलिज्म यदि हिंदुस्तान में हमें आगे बढ़ाना है, राष्ट्रवादी तत्वों को ही हमें करना है समर्थन, तो असम को बचाना होगा। और असम को बचाने का मतलब है कांग्रेस का पराजित करो। और अभी बीजेपी है तो बीजेपी को पसंद करो। तो ये छोटे छोटे गांवों तक आरएसएस के लोग गए। हेमंत बिस्वा वो जानता है, और इसीलिए हेमंत बिस्वा भी बड़ी चतुराई से आगे बढ़ेगा। वो नेता तो है, पूरा असम का एक नेता हो गया है, लेकिन उनको अपनी पार्टी को साथ लेकर ही चलना है। और उसमें उनको समर्थन मिला है अमित शाह। जी। ये अंदरूनी जो बातें मैं थोड़ी बहुत कह रहा हूँ, लेकिन और अमित शाह भी पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, अभी भी त्रिपुरा में भी बीजेपी है, नागालैंड में बीजेपी के साथ, नागालैंड फिलहाल लोग है, मिजोरम थोड़ा कम है, मेघालय और अरुणाचल में भी बहुत काफी प्रभाव है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, और अब प्लस हो गया बंगाल।
तो एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा वो भगवा रंग से रंगा जाए, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, व्यूह रचना है। और इस व्यूह रचना के लिए ही आगे बढ़ते रहे। सर इसी यहाँ पे प्रकार एक के आगे। एक सवाल है सर यहाँ पे। जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार हारने की वजह क्या हो सकती है? क्या एक ये राइज ऑफ हिंदू वेव है जहां बीजेपी को समर्थन मिल रहा है असम में? नहीं, इसमें क्या है कि उनका जो अतीत है ना कांग्रेस का, बहुत अच्छा था। मैंने कहा बारडोलाई, फिर मेघी, ये सब ये अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वोट बैंक के आधार पर वहां के मुस्लिम, सर सादुल्ला 1933 में यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे। और सादुल्ला ने एक योजना बनाई थी कि भाई हमें यहाँ ज्यादा अनाज पैदा करना। तो उन्होंने कहा इसलिए हमें लोग चाहिए। तो बंगाल, तब तो बंगाल पूरा बंगाल था, पाकिस्तान तो था नहीं, वहां से मुस्लिमों को बुलाया। तो ऐसे लोग आ गए कि वहां कहावत पड़ गई क्या, ऊपर अल्लाह और नीचे सादुल्ला। इतने हद से लोग गए। ब्रिटिशरों ने भी कहा कि ये तो दूसरा बंग भंग हो गया है, बंगाल का विभाजन जैसी बात हो गई है। लेकिन तब कांग्रेस एक नशे में थी, ये कहना चाहिए, वास्तविकता है कि 47 के बाद काफी वर्षों तक गांधी जी और नेहरू जी के कारण कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में, केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहा। और कहा जाता था कि कांग्रेस किसी पेड़ को या बिजली के खंभे को भी प्रत्याशी बनाएगा तो वो उनको भी लोग वोट देंगे। बात सही है। मैंने देखा है 1962 में जब सौराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, एक छोटे छोटे गांव में जाते थे। एक गांव में हम गए, वहां बाहर पेड़ के पास एक मुच्छड़, दो तीन चार लोग बैठे हुए, और एक बोर्ड लगाया था, यहाँ कांग्रेस के सिवा किसी भी विरोधी दल को गांव में प्रवेश करना मना। देखिए, इस प्रकार का चुनाव हो रहा था। अब ये ममता इस बार चुनाव की बात कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये परंपरा होती थी, थप्पेबाजी, एक साथ सभी वोट लेकर सब एक डाल में डाल देते थे और कांग्रेस जीत जाती थी। आपको कश्मीर के चुनाव, सबसे पहला जो चुनाव उसको याद करना चाहिए। प्रजा परिषद नाम की एक बड़ी संस्था थी, शेख अब्दुल्ला के नेशनल फ्रंट के खिलाफ, राष्ट्रवादी थे, प्रेमनाथ डोगरा उनके अध्यक्ष थे। उन्होंने सब प्रत्याशी खड़े किए, तो पूरे चुनाव में सभी प्रत्याशियों को अमान्य ठहराया, किसी को भी उम्मीदवार नहीं बना सकते। हार गए, नेशनल फ्रंट आ गए, और फिर शेख अब्दुल्ला ने क्या किया वो तो सब हिस्ट्री है। तो हमारे यहाँ चुनाव प्रथा को भी थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए, ये नहीं होता। शेषान ने वो किया था, टीएन शेषान, बड़ा, वो तो एक बार यहाँ अहमदाबाद में वो अडवाणी के खिलाफ, फिर बाद में तो वो चुनाव में भी खड़ा था, मैं मिला था। तो इसके पहले जो वो चुनाव आयुक्त था, तो तब उन्होंने काफी काम, लेकिन बाद में अब और सशक्त बननी चाहिए चुनाव आयोग, और प्रो डेमोक्रेटिक होने चाहिए पार्टीज। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जागरूक मतदाता, ये नहीं होता है साहब। जाते हैं तो बिल्कुल एक साथ एक एक एकदम में एक एक तरह कुछ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक हमारी नेशनल अवेयरनेस, ये आने वाले दिनों में होगा नहीं होगा ऐसा तो हम नहीं मानते। हम बड़े आशावादी हैं। 80 साल की जिंदगी चली गई, इतने चुनाव देखे, 52 से मैं देख रहा हूँ चुनाव, आज तक के चुनाव, काफी आसमान जमीन का अंतर उम्मीदवारों में, लोगों में, प्रचार में, प्रचार तंत्र में। इस बार कैसा प्रचार हुआ चारों तरफ। अब वो खेड़ा नाम का कोई कांग्रेस के नेता, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गलत आरोप लगाए। वो ये तो हेमंत बिस्वा है, बोलता नहीं है, अपने ऊपर जो कुछ होता है, उन्होंने खेड़ा को पेड़ा बना दिया।
उन्होंने ही कहा, उनका शब्द है। और अभी भी वो उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका जो एलिगेशन है गलत एलिगेशन, फर्जी पूरा प्रमाण देकर कैसे हो सकता है। लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसके कारण हमको कांग्रेस राज्यसभा में भेज देगी। कांग्रेस बड़ी चतुर है, नेतृत्व ऐसे वो मूर्ख नहीं है। उन्होंने उनको भी वो राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। अब बेचारा दाढ़ी बाढ़ी लगा के पूरा उनका उनका आपने चेहरा देखा होगा, अभी नया इस बार आया है भूगर्भ के बाद। वो वो पूरा हो गया, उनका राजनीतिक कारकिर्दी समाप्त हो गई। सर ऐसा तो नहीं, मतलब असम के लोग क्या ये घुसपैठी बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उससे परेशान, कहीं परेशान है? और हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कहा है, आश्वासन दिया है कि मतलब मेरे रहते हुए, मतलब उनको उन्होंने क्लियरली बोला है कि मुझे बांग्लादेशियों का वोट नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए, मैं इन लोगों को खाली करवा दूंगा यहाँ से। तो कहीं ये एक रीजन तो नहीं है कि लोगों पे एक विश्वास आ रखा है कि लोग परेशान हैं घुसपैठियों से? आ, और ये क्या ये एक वजह है, या विकास के, आपको लगता है असम विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, या क्या रीजन हो सकता है स्पेसिफिकली? ये बात आपकी सही है, वहां विकास नहीं हुआ। बरौनी रिफाइनरी वर्षों से उनका कागज पर नाम था, कुछ पैसे ही नहीं वहां दिए जाते थे। असम के विकास के बारे में कोई सोचता ही नहीं था दिल्ली में। और वहां इतनी पपेट सरकारें थी। मैं जब गया तब वो ये प्रफुल्ल महंत और बाकी सबको मिलना हुआ, तब मैंने उनको पूछा था कि आसाम की कौन सी चिंता है। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आप लोग हमारी चिंता नहीं करते, देश पूरा। ये उनकी बात सही। और विकास, छोटी छोटी रेलवे लाइनें नहीं हम वहां रख सकते, पूरे को असम में चाहिए था। अब यदि रेलवे होती है, बाकी सब होता है, फैक्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, तो विकास होता है। अब ये तीन सरकारों के बाद अब तीसरी, धीरे धीरे हेमंत बिस्वा ने उस पर आधारित वो उनका काम शुरू किया है। और उद्योग विकास के लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई। और धीरे धीरे जो लोग हैं, लोगों को उनमें सहभागी बनाने लगे। नहीं तो छोटे बड़े ये वनवासी विस्तार बेचारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं देखा है मैंने, छोटे गांवों में उनके गांव के बाद एक नामघर रहता है। नामघर यानी आचार्य शंकर देव जो थे एक जमाने में, उन्होंने सब जगह स्थापित किया था। शाम को वहां मिलते हैं, अपने अपने दुख रोते हैं। मेरे वो पूरा प्रत्यक्ष अनुभव है। दिल्ली में वनवासी और मुस्लिम के बीच क्लैश हुआ और सहस्त्र लोग मारे गए, एक बे नहीं, बहुत से। नौगांव में ऐसा हुआ था, कोकराझार में ऐसा हुआ था। तो ये जो उन दिनों में जो एक हताशा, बिल्कुल आंदोलन के दौरान, लेकिन उस हताशा के सामने लोगों को खड़ा रहना बहुत 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 मुश्किल था। मैं एक किस्सा सुना दूं असम आंदोलन के दिनों में। जी जी अ, सर। फूकन कॉलेज, फूकन सभाखंड एक वहां गुवाहाटी में, रात को एक कार्यक्रम था कि कुछ कवि और गीतकार वहां आंदोलन के गीत गाए। कार्यक्रम बड़ा, लोग एकदम बरचक, सब सब लोग आ गए थे देखने सुनने के लिए। और एक के बाद एक कवि, एक गायक, इसमें भूपेन हजारिका भी थे, बाकी सब लोग थे। तो शुरू हो गया कार्यक्रम। मैं गया रात के ठंड कोहर में, बाकी सुमसाम गुवाहाटी। तो 1 घंटा हो और फिर अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। अब किसी भी कार्यक्रम में इतना अंधेरा हो तो क्या होता है, हम कल्पना कर सकते हैं। महिलाएं बहुत सी, युवा महिलाएं भी थी। लेकिन मेरे आश्चर्य के का साथ 3 या 4 स्वयं सेविकाएं स्टेज पर गई और मोमबत्ती लेकर खड़ी रही। और मोमबत्ती के उजास में कवियों ने गीत गाए, कार्यक्रम चला, 1 बजे तक चला। ये तो असम की प्रजा का आंदोलनकारी मिजाज। ऐसा होना
ये असम की अपनी संस्कृति, उन संस्कृति को सही अर्थ में यदि हेमंत बिस्वा उनको सोच सकता है तो असम द ग्रेटेस्ट प्रोविंशियल ऑफ द इंडिया बन पक सकता है। मेरा असम के प्रति बहुत अनुराग है पहले से ही। तो सीमावर्ती राज्य है, लेकिन ठीक है, उनके बारे में एक अच्छी सी एक कहावत भी है, बड़े आलसी लोग होते हैं वो। आप बता सकती हो सच है या नहीं? और उनके बारे में कहते हैं कि कुछ काम करना है तो क्या लाहे लाहे चलेगा चले। ये लाहे लाहे वाली जो मानसिकता है धीरे धीरे कम होने लगी। अब शिक्षित लोग आ गए, बहुत सी कॉलेजें नई आ गई, यूनिवर्सिटीज हैं, आईटीआई है, बैरोनी की वो जो ये ऑयल रिफाइनरी चल रही है, बाकी सब उद्योग चल रहे हैं। तो लगता है कि असम के भाग्य में अच्छा विकास लिखा। बिल्कुल सर, अगर आप असम के देखें, हमारे यहाँ पे नॉर्थ और असम आप कंपेयर भी करें, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत जोर तोड़ से वो है। वहाँ पे औरतें बहुत पावरफुल है, वो कमाते हैं, वो दुकानों में भी बैठते हैं। वुमेन वहाँ पे सेफ भी है। वहां पे रात को 11 बजे भी आपको अगर नॉर्थ ईस्ट पूरा अगर देख ले, अगर औरतें वहां पे सारा काम संभालती है, तो ये भी एक विकास ही हम बोलेंगे। फिर देखते हैं और क्या विकास देख सकते हैं, क्योंकि असम का मेंटालिटी जो है वहां के प्रजा का, वो विकास के तरफ मतलब काफी काफी मॉडर्नाइज्ड ही है। लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं स्कोप की कमी हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाती है। अगर वहां तक अपॉर्चुनिटीज पहुंचा पाए, आई थिंक असम, एक्चुअली आपने सही बोला है, एक बहुत बड़ा वो बन सकता है एंटायर इंडिया में। बट आपको लगता है हिमंत बिश्वा शर्मा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे असम में? हेमंत बिस्वा शर्मा को हम कुछ सलाह तो दे नहीं सकते, छोटे लोग हैं, अपनी ताकत पर वो खड़ा है। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहिए, पूरे देश के जो अलग अलग राजनीति को हमने देखा है, तो उनको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए, एक गवर्नमेंट में और एक संगठन। ये दोनों यदि मिलती है ऐसी टीम, जो हर कर गांव गांव जाकर सभी जगह समस्याओं को देखे, सोचे, समझे, प्रशासन, वहाँ जो हमारे यहाँ जैसे गांधी करे, आप वहाँ वो प्रशासनिक राज्य है वहाँ, गुवाहाटी के पास है। देखिए देखिए। सर आप बीच बीच में रुक रहे हो, फिर से बोलिए सर। फिर बोल आपका दे। नेटवर्क आज डिस्टर्ब कर रहा है, या तो मेरा कर रहा है या तो आपका। हाँ जी सर, बोलिए। हेमंत शर्मा को हमें जाल मुड़ी खाना क्या। झालमुड़ी खा के नेटवर्क सही होगा मुझे लग वो तो कहें ममता जी को वो भेजते। हाँ, आप क्या कह रहे थे सर, हेमंत शर्मा जी को हाँ, गांव तो गांव मैं ये जाके? कहना चाहता हूँ कि हेमंत बिस्वा जी को वो प्रकार की एक विश्वसनीय टीम बनानी चाहिए, एक सरकार में और एक संगठन में, पार्टी में। ये दोनों पूरे असम का दौरा करे, प्रश्नों का एजेंडा बनाए, कहाँ क्या उद्योग की संभावना। अब जैसे कि चाय के बड़े बागान है, चाय में वहां क्या होता है कि मारवाड़ी लोग, कुछ लोगों ने एक्सप्लोइटेशन ज्यादा, तो चाय के बागान का को भी देखें। और इसी प्रकार जो अलग अलग और बड़ा सुंदर प्लेस है साहब, कुछ भी विकास हो सकता है। छोटे छोटे गांव के लोग बड़े मेहनतू कष्ट एकदम है, ये छोटी बात है, लेकिन उनका हमने एक्सप्लोर नहीं किया, उनकी ताकत को। उनकी ताकत को एक्सप्लोर करना, ये हेमंत बिस्वा शर्मा उनके चेहरे से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से तो लगता है कि वो जरूर करेगा। क्योंकि उनको दो प्रकार है, एक तो उनकी इच्छा है कि ये करना, दूसरी ये है कि उनको राजनीति में टिकना है। अगले चुनाव में भी उनको, लोकसभा में, बाकी सब में भी उनको जिंदा रहना है, अस्तित्व रखना है। तो ये दोनों कारण के कारण वो हो सकता है कि वो आगे बढ़े।
नहीं तो आप कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आशा आती है और फिर आशा का भंग हो जाता है। ऐसा हेमंत बिस्वा में नहीं होना चाहिए। बाकी जगह हुआ है ऐसा, हमारे यहाँ भी हुआ है बाकी। लेकिन राजनीति में हमारे यहाँ गुजराती में एक शब्द है राजकारण, इसमें कारण है। और ये अच्छे बहुत से होशियार लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि राजनीति यदि कहते हैं तो उसमें नीति आ जाती है। अब नीति से उनका आसमान जमीन का फर्क होता है, वो रखते नहीं। तो ये राजनीति करे असम में, राजकारण नहीं। तो बिल्कुल सर। और हम चाहते हैं कि एक बार उनको मिलने का भी, कब कैसे क्या होगा पता नहीं। मेरा इरादा तो एक पत्र अभिनंदन का अवश्य लिखेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात है। सर आप बोलिए। देखते हैं असम का, असम में तो बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप दिख गया हमें। असम में बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। आपको क्या लगता है आगे भी असम में बीजेपी क्या अपना गढ़ बना लेगी? कहाँ और जगह के? असम में अभी तो बीजेपी, फ्यूचर अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने अपना घर बना लिया है वहां पे? करीब करीब है, अभी सभी 100% तो नहीं है, 100% तो नहीं होता है। धीरे धीरे होगा। और धीरे होगा इसलिए यदि विकास के काम हो। और दूसरा, हिंदू फीलिंग्स, तो घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू फीलिंग, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वहाँ माहौल था। मैंने देखा था कि जमीन पर हम देखते हैं कि ये देखो ये साहब, ये तो ये वहां से आ गए। उसमें भी अलग अलग थे, अ, उनके नाम अलग अलग थे। एक मियाँ थे और एक मुस्लिम थे। बिल्कुल। ये मियाँ और मुस्लिम में फर्क करते थे। मियाँ वहां के ही थे, जो पुरानी एक विरासत थी वो, और मुस्लिम वहां से आए थे। तो ये एक मानसिक जो विकास का अवरोध होता है, उसके लिए कुशल प्रशासक चाहिए, कमिटेड प्रशासक चाहिए, और नेशनलिज्म के प्रति पूरा का पूरा वो समर्पित होना चाहिए। ऐसी राजनीति अब पूरे देश में हो। हम तो चाहते हैं कि बंगाल में भी हो, बंगाल की बात करेंगे बाद में। लेकिन इसी जगह, और नहीं तो ये तोड़ जोड़ का मामला रहता है। देखिए तमिलनाडु में ये जो विजय 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 कहा हमने, बहुत बड़ा चेहरा बना दिया। ईसाई है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, हिंदुओं के प्रति उनका जरा कुछ भी लगाव नहीं है। पॉपुलर है, अभिनेता है, और दक्षिण भारत में अभिनेता का जरा बड़ा पूरा होता है उनका। बहुत से लोग उनके पीछे इतने फैन होते हैं कि आपघात भी कर लेते हैं। और वहाँ कितने लोग जो अभिनेता थे वही राजनेता हुए। जी रामचंद्रन हुआ, जय ललिता हुए, करुणाकरण हुए। अब इनकी बारी है। अब कांग्रेस ने देखा कि अब इसको आगे बढ़ाओ। जैसे सेंट्रल में कभी उन्होंने चंद्रशेखर को बढ़ाया था, चरण सिंह को बढ़ाया। इसी प्रकार एक बार बदलो, उनको समर्थन दो, और फिर वो आप ले लो, एक बात बन जाए। फिर अपनी चतुर कर लो, ये आईडिया। बिल्कुल सर, तमिलनाडु तमिलनाडु पे भी एक हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हाँ, असम के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। फिलहाल हिमंत बिश्वा शर्मा बहुत खुश है। उनके आ, असम में दिख रहे हैं, सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आगे विकास के लिए वो कितना काम करते हैं, आगे देखते हैं। अप्रैल मई का दिन बिहू का होता है। बिहू एक बड़ा पर्व है उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिहू का। तो बिल्कुल ये चुनाव का बिहू हो गया, बिल्कुल। परिणामों का भी। बिल्कुल और सर। हमारी सभी की ओर से, ये हमारे ग्लोबल आई की ओर से उनको बहुत बहुत हृदय से। शुभकामनाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। असम एक उभरता हुआ ग्रोइंग एक पूरा, मैं बोलूंगी ग्रोइंग प्रजा है वहां के। बहुत आगे बढ़ने, वो खुद ही इतना केपेबल है कि उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सबकी नजर हिमंता बिश्वा शर्मा के पे है कि वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज खींच के असम में ला सके और वहां के जो यंग जनरेशन है उनको स्कोप दे सके। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द ग्लोबल आई। धन्यवाद।
Assam today represents a new political model, a model where development, identity, and strong leadership come together to create electoral dominance. But this raises an important question. Is this a sustainable governance framework for the future? Or is it a system heavily dependent on one leader's political strength? Think about it. For more updates and insights, keep watching The Global Eye.